गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम एनिलिडा का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ मेटामेरिज्म इन एनिलिडा। जैसे कि मैंने जनरल कैरेक्टर्स में बताया था कि एनिलिडा का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब ही ये है कि व्हेन द होल बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, right? And each, if you see, if this is the body and this body is divided into annuli, into ring like structure, resulting into the formation of various segments, and each segment is also known as somite or metamer, right? So it is the differentiation of the body into various segments or various somites or various metamer, which we call as metamerism. अगर आप और इसकी definition देखें तो here you can see that division of the animal body into an anteroposterior row. If you see, this is anteroposterior view of the animal, and if in anteroposterior row various segments are formed, we call it as metamerism, right? If you see that metamerism in case of earthworm, around 100 to 120 segments are there. But say this is earthworm, this is the anterior end, this is the posterior end. So even at the anterior end, say this is the first segment, second, third, fourth. The very first segment known as peristomium. Peristomium. This is peristomium, and just before peristomium there is a segment which we call as prostomium. So this first segment is known as prostomium. Same way in the end, in the last, say, suppose this is the last segment, this last portion is known as pygidium. So you can say prostomium and pygidium, these two are not segments. So except prostomium and pygidium, rest of the body divisions of the earthworm are divided into somites or segments, right? Due to the presence of these groove like structures which we call as annuli. Correct. Now if you see, in case of earthworm, says this is the end, this is the pygidium. In case of earthworm, new segments are added just before the pygidium, say here, like this. So you can say that in earthworm, newer segments are at the posterior end. Here the new segments are added. The oldest segments are at the anterior end and new segments are at the posterior end, right? If you see, metamerism is not only restricted to the outer body wall. In case of earthworm, metamerism or complete division of the body is seen on the internal side also. Just see. Can you see? These are the segments, and these segments correspond to internal partition of the body known as septa. Correct? So here you will see that the division or the division of segment, it coincides with external segmentation, or you can say external segmentation correspond to internal segmentation or internal division. Such type of metamerism is known as true metamerism. Okay. Now in each segment you will see there are repetition of organs. Say if you see, these are the excretory organs known as nephridia. Since they are present on the septum, so they are septal nephridia, right? Same way, if you see, these are the reproductive organs, right? These are the two pair of testes. Here you will see that these are hearts. Correct. So this way you'll see that the animal is divided not only externally, internally also it is divided into segments, and each segment it repeats the organs, right? Here also you will see this is blood circulatory system. The major blood vessels are giving rise to the blood vessels serving each segment. Here also you just see how the from the this is
uh, this blood vessel is known as ventral vessel, and ventral vessel is just seeing giving ventrotegumentary vessel, right? Here also this is the dorsal vessel giving rise to various blood vessels. So here also you will see that in each segment the same organ is being repeated. Just see, these are the four spermatheca, these are the two testes, although ovary lies only in one segment, right? So here also internally also these organs are being repeated. Some organs are present in almost all the compartment, and some organs are restricted to few compartments, right? So you see that this metamerism is deep rooted, or it has entirely divided the animal into various compartments. Only the, if you see, except alimentary canal, just see, this is alimentary canal, it is not segmented, it is of various width along the length of the body wall. Even ventral nerve cord, if you see, I'll just show you the diagram of nerve cord. Just see, here also in each segment there are two ganglia, and these ganglia are joined together by various connective, and they are joined to each other by commissure. So this is how this area, that is circumpharyngeal nerve ring, is restricted to the interior region only, whereas the ventral nerve cord, if you see, it is again present in a serial repetitive manner in each segment, right? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि आप कुछ ऑर्गन्स जो है रिपीट हो रहे हैं, कुछ ऑर्गन्स जो है रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि ऑल्दो द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स और डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, बट वो सारे कोऑर्डिनेट करके एनेलिडन्स में फंक्शन करते हैं, करेक्ट? नाउ इफ यू सी दैट दिस मेटामेरिज्म फीचर, this is characteristic feature of Annelida, no doubt, but this feature is common in all the embryos. All embryos, if you see, they are segmentally divided into various compartments, and on metamorphosis, or on being converted into adult, this metamerism is lost. Why it is lost? It may be lost due to जैसे एंटीरियर एंड पर सेंस ऑर्गन्स या गैंग्लिया कंसंट्रेट कर जाते हैं और वो हेड बनाते हैं, यानी कि सिफिलाइजेशन के कारण दे आर लॉस्ट, राइट? दे मे बी लॉस्ट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ लिम्स. कई बार कुछ ऑर्गन्स, कुछ सेगमेंट्स में केवल लिम्स फॉर्म होते हैं, कई बार कुछ एरियाज में डिफ्रेंसिएशन, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, इसीलिए लॉस्ट हो जाता है. सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से दैट मेटामेरिज्म इज सीन इन ऑल द एम्ब्रियोज, वाइल इन अडल्ट some metamerism is retained, some type of division is retained, some is lost. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे ह्यूमन बींग में आप देखो, ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है. वर्टिब्रल कॉलम इज डिवाइडेड टू वेरियस वर्टिब्री. तो वर्टिब्री का ये वर्टिब्री रिपीट हो रही है ना हर सेगमेंट में. सो ऑल इसको हम इंटरनल सेगमेंटेशन कहेंगे. ऑल्दो इफ यू सी, यहाँ पर सेगमेंटेशन है, बट सेगमेंटेशन कौन सी है? इंटरनल सेगमेंटेशन. सेम वे आप देखो रिब्स में क्या हो रहा है, ये बोन्स जो है रिपीट हो रही है ना, राइट? इफ यू सी 1 2 3 4 5, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेगमेंटेशन. सेम वे ह्यूमन बींग्स में अगर आप देखोगे, मसल्स, इस तरह एक सेट ऑफ मसल्स है, फिर दूसरा सेट ऑफ मसल्स है. जो इस तरह की जो पोजीशन है मसल्स की, खासकर स्केलेटल मसल्स की, वो भी एक तरह का सेगमेंटेशन है, या यू कैन से मेटामेरिज्म है, इंटरनल मेटामेरिज्म है, correct? So now you understood what exactly metamerism means. Now I will talk about different another thing. See, it is a prominent feature of Annelida. To some extent it is seen in Arthropoda also and in Vertebrata also, जैसे मैंने दिखाया. ऑर्थोपोडा में कैसे, जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी इंसेक्ट, जैसे बेसिकली इंसेक्ट की बॉडी क्या, ये हेड है, ये थोरैक्स है, और ये एब्डोमिन है. तो हेड, तो यहाँ पे माउथ पार्ट्स होते हैं, वेरियस ऑर्गन्स आर देयर, आईज देयर. थोरैक्स ऑल्सो इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स. एब्डोमिन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 9 to 10 segment. So in arthropoda also some sort of metamerism or segmentation is retained, although it is only external
metamerism or external segmentation. Correct. So Annelida, they have well developed metamerism. Arthropods shows external metamerism. Vertebrates show internal metamerism. ठीक है, अब हम करते हैं ये जस्ट बिफोर देखो एक टिपिकल एनालिड प्लान देखो आप, ये आप देखो बॉडी जो एक्सटर्नली जो है डिवाइडेड है वेरियस सेगमेंट्स में. इंटरनल जस्ट सी देयर आर वेरियस सेप्टा, और हर सेप्टा जो है पूरी बॉडी को कंप्लीट टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है. एंड दिस लास्ट सेगमेंट इज नोन एज पाइजीडियम एंड द फर्स्ट सेगमेंट इज नोन एज पेरिस्टोमियम. और पेरिस्टोमियम के ऊपर जो है दैट इज प्रोस्टोमियम. सो प्रोस्टोमियम एंड pygidium, they are not segment, they are this is the anterior most part and this is the posterior most part of the earthworm. Correct. Now we will see type of metamerism. Just a minute. Type of metamerism. Although you have basic idea कि metamerism में क्या होता है, फिर भी एक for information sake अगर हम type of metamerism देखें तो first type हम वो देखेंगे external and internal metamerism. ठीक है. अब जैसे कि जो ट्रू मेटामेरिक एनिमल है, यानी कि अगर हम कहें कि जो एग्जैक्ट जिसे हम टिपिकल मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं वो किस में देखी जाती है वो देखी जाती है एनालिड्स में, जिसमें कि एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी है और इंटरनल सेगमेंटेशन है थ्रू आउट लेंथ ऑफ द बॉडी. पूरी बॉडी की लेंथ ईच एंड एवरी पार्ट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, राइट. सो इट इज this type of segmentation is known as metameric segmentation. जबकि whereas if you see external segmentation is seen in arthropod. अभी मैंने आपको डिवाइड करके भी दिखाया था कि जैसे अगर आप देखेंगे कि जो इंसेक्टा है उनकी बॉडी इस तरह जो है ये थोरैक्स है, ये एब्डोमेन है. सो दिस सेगमेंटेशन इज नॉट सीन इन अगर हम इसका बॉडी इंटरनली देखते हैं तो सच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज नोन एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन. जबकि मैन या दूसरे वर्टिब्रेट्स में, अभी मैंने आपको रिब्स दिखाए थे, वर्टिब्रल कॉलम दिखाई थी, मसल्स दिखाई थी, उनमें एक्सटर्नली आप देखोगे किसी भी कॉर्डेट पर तो एक्सटर्नल कोई सेगमेंटेशन नहीं दिखाई थी. इंटरनली जो है मसल्स में, रिब्स में, इस तरह के एरिया में जो सेगमेंटेशन दिखाई देती है उसे हम कहेंगे इंटरनल सेगमेंटेशन. करेक्ट. एक इसी के करस्पॉन्डिंग एक दूसरा डिवीजन है दैट इज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म. एज द नेम इंडिकेट, कंप्लीट मेटामेरिज्म का मतलब क्या है? ट्रू मेटामेरिज्म. ट्रू मेटामेरिज्म कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है एनालिड्स में, क्योंकि एनालिड्स में अगर आप देखोगे एम्ब्रियो एज वेल एज अडल्ट्स दोनों में जो है ये मेटामेरिज्म रिटेन की हुई है. नाउ वी कम टू इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म. इसमें क्या है कि व्हेन सेगमेंटेशन इज अगर सेगमेंटेशन केवल एम्ब्रियो तक ही रिस्ट्रिक्टेड है और बाद में जब एम्ब्रियो अडल्ट में चेंज होता है तो सम सेगमेंटेशन इज लॉस्ट. इस तरह की मेटामेरिज्म को हम कहेंगे इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म. करेक्ट. नाउ कंप्लीट मेटामेरिज्म का दूसरा नाम है हॉर्मोनोमस मेटामेरिज्म. हॉर्मोनोमस मेटामेरिज्म. और इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म का दूसरा नाम है हेटेरोनोमस मेटामेरिज्म. और मैंने बताया था कि मेटामेरिज्म लॉस्ट करने के क्या क्या रीजंस हैं. या तो सिंप्लीफिकेशन हो गई. सिंप्लीफिकेशन का मतलब लॉस्ट ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स, यानी कि यहाँ पे लॉस्ट ऑफ क्या है? लॉस ऑफ सेगमेंट्स. या फिर
सेफलाइजेशन होगी। सेफलाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हेड होती है, हेड होता है। हेड में क्या होगा कि न्यूरल मैटर हेड में इकट्ठा हो जाएगा, सर्टेन सेंस ऑर्गन एग्रीगेट हो जाएंगे एंटीरियर एंड में, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हेड। तो सेफलाइजेशन भी एक कारण है फॉर द लूजिंग फॉर द लॉस्ट ऑफ सेगमेंट्स। दूसरा जो है डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स, डेवलप जैसे कि से लिम्स, जैसे लिम्स हैं। अब आप देखो कि ऑर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट्स है, क्लास इंसेक्टा में अगर आप देखोगे जो विंग्स हैं वो थोरैक्स रीजन पर रिस्ट्रिक्टेड, इवन जो लेग्स हैं वो भी थोरैक्स वेंट्रली जो है लेग्स प्रेजेंट होते हैं, थोरैक्स रीजन पर रिस्ट्रिक्टेड है। तो डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स लाइक लिम्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है सेगमेंटेशन लॉस्ट होने की। अनदर इज डिफ्रेंसिएशन। कई बार क्या होता है कि कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट में, तो सो दे लूज सेगमेंट in course of forming that organ. So these are the various reasons of losing true segmentation, or you can say segmentation. Now we come to another part, that is there are certain theories regarding origin of metamerism. Which are these theories? We'll take one by one. First one is pseudo-metamerism. Pseudo-metamerism थ्योरी, ये pseudo-metamerism थ्योरी जो है हाइमन ने दी थी 1951 में, और इसको किसने सपोर्ट किया था? नॉट सपोर्ट, हाइमन और गुड्रिक ने दी थी 1951 में ये थ्योरी। ये कहते हैं कि ये जो मेटामेरिज्म का डेवलपमेंट हुआ या ओरिजिन हुआ, ये हुआ सीरियल रेपिटेशन के कारण, सीरियल रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन्स, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या योग ग्लैंड्स हैं या नर्व कॉर्ड्स हैं, इनके रेपिटेशन के कारण जो है, जैसे ऑर्गन्स जो है वो रिपीट करते गए और एज अ रेपिटेशन जो है वो मेटामेरिज्म का जन्म हुआ। करेक्ट। बट अगेन इफ यू सी दैट दिस थ्योरी इट वॉजंट सो वाइडली एक्सेप्टेड, इसको इतना वाइडली एक्सेप्टेंस नहीं मिला। फिर एक दूसरी थ्योरी आई, दैट इज साइक्लोमेरिज्म थ्योरी। ठीक है, साइक्लोमेरिज्म थ्योरी को जो है सेजविक ने प्रपोज किया था 1884 में, और रीमैन ने इसको सपोर्ट किया था 1963 में। ठीक है, ये कहते हैं कि सिलोम जो है, सिलोम का ओरिजिन तुम्हें पता होगा कि हमने फाइलम सिलेंट्रेटा में एक क्लास करी थी एंथोजोआ, जिसका नाम एक्टिनोजोआ भी है, जिसमें वो था गॉर्गोनिया, तुम्हें याद होगा मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, गॉर्गोनिया, फंजिया, ये सारे सिलेंट्रेट बिलोंग करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो सिलोम जो है बेसिकली सिलेंट्रेट्स में ओरिजिन हुआ। उनका कैसे ओरिजिन हुआ ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो क्या हुआ कि ये एलिमेंट्री कैनाल है, और एलिमेंट्री कैनाल से 4 पाउचेस अराइज हुए, जिनको बोला गया दीज आर एंट्रोसिलिक पाउचेस, राइट। और ये जो एंट्रोसिलिक पाउचेस है, दे डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोटोसोल, मीजोसोल एंड प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील, right? Later on what happened, that protocele and mesocele, they were lost, only metacele was left, right? And this metacele, it started redividing, just see, into different pouches, right? And later on if you see in this diagram, this metacele, it started giving rise to primary metameres. So this is how this formation of somites or segmentation started from class Anthozoa. Correct. Again if you see this theory wasn't widely accepted. Why? Because ये मानते हैं कि जो फ्लैट वर्म्स हैं या दूसरे वर्म्स हैं वो जो है अगर सेगमेंटेड थे तो हाउ दे लॉस्ट द सेगमेंटेशन।
Correct. Now there is another theory, Corm or fission theory. Corm और fission theory. एज द नेम इंडिकेट, ये क्या कहते हैं कि इसको दिया था पेरियर ने 1882 में, ठीक है. सो ये व्हाट दे से दैट कि ये जो सपोज वन सेगमेंट वाज देयर, दिस सेगमेंटेड इट underwent binary fission dividing into two, again it grew in size, then again it got divided by binary fission into four parts, they grew in size. So this way if you see a segmented animal जो है वो, that is a resultant of a chain of binary fission. Or you can say what they said, or another possible view was that maybe one segment gave rise to a bird like structure, then another bird was grown, and these birds, ये जो birds हैं या ये जो fission के products हैं, ये आपस में कभी separate नहीं हुए और ये intact रहे, और as a result of which intact रहने के कारण इनमें morphology और physiological integration भी हो गया और वो एज वन एंटिटी जो है इन्होंने सर्वाइव किया. तो इवन इन्होंने कहा कि ये यू कैन से जोआइड्स जो हैं, इस तरह जो जोआइड्स हैं वो ऐड होते गए और एक जो एनिमल की ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हुई जो कि सेगमेंटेड था. बट इसमें जो है मेन ऑब्जेक्शन क्या आता है थ्योरी का, सपोज आप देखो कि ये एक है बाइनरी फिशन हुआ, फिर इसका बाइनरी फिशन हुआ, फिर इसका बाइनरी फिशन, यानी कि हर एक फिशन के बाद एक पार्ट न्यू था, एक पार्ट ओल्ड था, एक पार्ट न्यू था, एक ओल्ड था. तो इस तरह जो है कोई एंड नहीं मिला. जैसे इसमें है ना, अर्थ फॉर्म में तो पोस्टीरियर एंड में न्यू सेगमेंट्स फॉर्म होते हैं, फ्लैट फॉर्म्स में एंटीरियर एंड में न्यू सेगमेंट्स फॉर्म होते हैं. तो ये तो क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया न्यू एंड ओल्ड का. सो देयर वाज नो क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन विच इज़ द न्यूअर एंड विच इज़ द ओल्डर एंड. तो ये थ्योरी जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई. Then there is another theory which embryological theory, मतलब although मतलब they have given बुक में दिए, मैं तुम्हें बता रही हूँ. अदरवाइज इफ़ यू सी आई माई सेल्फ इज़ नॉट कन्विंस्ड विद दिस थ्योरी. ये क्या कहते हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण, राइट, बॉडी की फ्रेगमेंटेशन हुई, राइट, और फ्रेगमेंटेशन से एक एम्ब्रियो से एक ऐसे एडल्ट की फॉर्मेशन हुई जो कि सेगमेंटेड था, क्योंकि जो मीजोडर्मल स्ट्रक्चर्स थे वो जो है सारे फ्रेगमेंटेशन के कारण इस तरह जो है दे फॉर्म्ड सर्टेन सेगमेंट्स, यानी कि सेगमेंटल रिपीटिशन हुआ फ्रेगमेंटेशन के कारण. अनदर थ्योरी इज लोकोमोटरी थ्योरी. ये थ्योरी क्या कहती है कि जैसे एनिलिड्स जो हैं बरोइंग एनिमल्स हैं, बरोज में रहते हैं या फॉसोरियल है, तो बरो में रहने के लिए उनको एक एंडुलेटरी मूवमेंट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है. और एंडुलेटरी मूवमेंट के कारण क्या हाइड्रोलिक प्रेशर बड़ा इंक्रीज़ करना पड़ता है, और ये हाइड्रोलिक प्रेशर जो है केवल अगर टाइटली पैक्ड सेगमेंट्स होंगे, कंपार्टमेंट्स होंगे, उनके कारण ही पॉसिबल हो सकता है, राइट. तो कुल मिलाकर अगर हम कंक्लूड करें कि कोई एक सिंगल थ्योरी नहीं है कि जो बताए कि ओरिजिन ऑफ सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म कहाँ से शुरू हुआ. प्रोबेबली जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में ओरिजिनेट किया और देन दे अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशन. सो यू कैन से दैट एक तरह का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ मेटामेरिज्म का, correct. Now if we see what is the significance or you can say importance of metamerism. सबसे पहला अभी हमने किया ही लोकोमोशन. यू नो दैट एनालिड्स में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं, राइट. सो अगर आप देखेंगे कि ये जो मसल्स हैं सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये जो है हर सेगमेंट में प्रेजेंट है और हर सेगमेंट का आपस में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है
और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होने के कारण जो है अर्थवर्म जो है या एनालिड्स जो है वो मूव करते हैं फॉरवर्ड, right? So if you see that due to the serial repetition of these muscles in various segments but in coordination with each other, it led to movement, or you can say अगर वो aquatic है तो creeping हुई, और अगर fossorial है तो सॉरी aquatic है तो swimming हुई, अगर वो fossorial animal है तो creeping result, it resulted in creeping due to the alternate contraction or relaxation of these coordinated muscles. Another importance is physiological differentiation. इससे क्या हुआ, अब आप देखो कि मेटामॉरिज्म ने, अब आप देखो कि कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स है वहाँ पर रिप्रोडक्टिव, जैसे मैंने दिखाया भी था, आई जस्ट शो यू, जस्ट सी, जैसे ये आप देखो 14, 15, 16 सेगमेंट, 14, 15, 16 पर आपको एक्सटर्नल वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, क्लाइटेलम प्रेजेंट है। अब आप देखो कि जो स्पर्मैथिका है जो कि स्पर्म स्टोर करता है, दे आर प्रेजेंट इन 6th, 7th, 8th, 9th, यानी कि सेगमेंटेशन के कारण डिफ्रेंसिएशन हुआ, डिफ्रेंसिएशन के कारण क्या हुआ, डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हुई और डिफरेंट सिस्टम्स की फॉर्मेशन हुई। तो एक ये फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया मेटामेरिज्म, करेक्ट। नाउ एक और चीज़ आपके सिलेबस में दी हुई है, वो एक बार हम कर लेते हैं। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू मेटामेरिज्म और सूडो मेटामेरिज्म। I'll just draw the line. Just a minute. राइट, अगर हम कैरेक्टर्स देखें, अगर हम ट्रू मेटामेरिज्म देखें, ट्रू मेटामेरिज्म अगर हम बोलते हैं तो कि द एनालिड्स और अर्थवर्म पर्टिकुलरली इन माइंड, और अगर हम सूडो मेटामेरिज्म बोलते हैं तो कीप द वर्म्स इन माइंड, पर्टिकुलरली टेपवर्म। और यू कैन से कि हम डिफ्रेंशिएट टेपवर्म में जो सेगमेंट्स उनको बोलते हैं प्रोग्लॉटिड, तो यू कैन से हम सेगमेंट्स इन प्रोग्लॉटिड्स, या और यू कैन से ट्रू सेगमेंट्स ऑफ अर्थवर्म, इनका हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, करेक्ट। फर्स्ट कैरेक्टर्स अगर हम देखें तो ये है नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तुम्हें याद होगा कि मैंने एक बार मैं तुम्हें टेपवर्म की पिक्चर दिखाती हूँ ताकि तुम्हें डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाए। जस्ट अ मिनट, जस्ट सी, ये देखो ये टेपवर्म की पिक्चर है। एक और मैंने तुम्हें उस दिन दिखाई थी, आई रिमेम्बर, ये देखो टेपवर्म की पिक्चर है। इसकी जो बॉडी है, जो पोस्टीरियर सेगमेंट्स हैं उनको हम प्रोक्लॉटिड्स बोलते हैं, और ये जो एंटीरियर एंड है, अब आप देखो ये, इसको बोलेंगे हेड। हेड को हम वी ऑल्सो कॉल इट एज स्कोलेक्स। नेक को हम बोलते हैं स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला से नए सेगमेंट आते हैं और इनको हम बोलते हैं प्रोग्लॉटिड्स, जो कि मैच्योर सेगमेंट्स हैं, करेक्ट। सो here if you see annelids में, if you see number of segments, they are fixed, definite number of segments are there. if अगर आप अर्थवर्म देखोगे उसमें अराउंड 100 to 120 है, जबकि प्रोग्लॉटिड्स में, जिसमें कि सूडो मेटामेरिज्म है, यानी कि प्रोग्लॉटिड भी ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, बट दे आर सूडो, दे आर नॉट द ट्रू सेगमेंट्स, दे हैव इनडेफिनिट नंबर ऑफ सेगमेंट्स। कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट डिफरेंशिएट, इफ यू सी एडिशन ऑफ सेगमेंट्स, अगर आप अर्थवर्म में देखेंगे एडिशन ऑफ सेगमेंट्स का हो रहा है जस्ट पाइजीडियम से पहले, यानी कि पोस्टीरियर एंड में न्यू सेगमेंट ऐड हो रहे हैं, जबकि टेपवर्म में जो
नेक रीजन था या स्ट्रोबिला रीजन था, वहाँ पर ऐड हो रहे थे, तो जो एडिशन ऑफ न्यू सेगमेंट वॉज अकरिंग एट एंटीरियर एंड. करेक्ट. थर्ड डिफरेंस इफ यू सी, दैट इज शेडिंग ऑफ सेगमेंट्स. तो अर्थवर्म में देर इज नो शेडिंग ऑफ सेगमेंट, जबकि मैंने इसमें बताया था ना कि इनमें एपोलाइसिस होता है. एपोलाइसिस में क्या होता है, जो पोस्टीरियर मोस्ट या जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, दे आर लॉस्ट. धीरे धीरे दे लूज द पोस्टीरियर मोस्ट सेगमेंट्स विच आर ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स. So posterior end से they start shedding the segments. Another difference is, if you see, that is structure and function of, another character is structure and function of segments. Right. इसमें आप देखो कि हर segments जो हैं वो specialized हैं into different organs. राइट. अभी मैंने दिखाया था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसी दूसरे सेगमेंट में, हार्ट जो है दूसरे सेगमेंट में प्रेजेंट है. इसमें क्या है कि जितने भी मैच्योर सेगमेंट्स है या मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स है, उन सब में सेम सेट ऑफ ऑर्गन्स है, दे आर रिपीटेड. जबकि यहाँ पे सेगमेंट्स जो है, डिफरेंट सेगमेंट्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज कोऑर्डिनेशन. राइट. इफ यू सी, देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स, यानी कि जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, यू कैन से इंटरडिपेंडेंट. राइट. और वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी. जबकि यहाँ पर दे आर, ईच सेगमेंट इज इंडिपेंडेंट, इट इज़ नॉट इंटरडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट. वो एज एन इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं, परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस. राइट. और इसका ट्रू मेटामॉरिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो अर्थवर्म है. सूडो मेटामॉरिज्म का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है टेपवर्म. राइट. मेटामॉरिज्म जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया है. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.